wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. The Son of God never came to condemn anybody, He came to save people. And the Word of God today is not condemning you, it is allowing you to open your eyes and see you as you are, as God sees you. Thank God for the Word. Come on, thank God for the Word of God. देवाचे उतर आमका मेळटा म्हण कितली आमी बागी. आप और मैं ऐसा नहीं कर सकते. You and I cannot do this on our own. We have no strength. We have no strength within us. We have no power within us. God's word very clearly says, it's not by might, it's not by power, but it's by my spirit, says the Lord. Hallelujah. तेरी शक्ति से नहीं, तेरे बल से नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर के आत्मा के द्वारा आप सब कुछ करेंगे. Hallelujah. Hallelujah. And God saw that helplessness. That's why God sent His Son. आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था और वचन देहधारी हुआ. ते उतर तो शब्द मुनीसालो आणि मुनच्यामध्ये जियलो. ज्यानं जॉन बॅप्टिस्टका पहिल्या ताणें सांगले, ओ जावन आसा मेंढरो जो संसाराचे पाप काडटा. Hallelujah. This is the Lamb of God who takes away the sins of the world. And Jesus came onto this earth. And when Jesus died on the cross, जो शुरू में, that's why I told it to you in the beginning, जो शुरू में किया था in Genesis chapter 3, what did God do? He took the skin of animals and He put that on Adam and Eve and He covered them. And Adam and Eve, they tried to cover themselves with the fig leaves. अंजीर के पत्ते को लेकर अपने शरीर को कवर करने की कोशिश की आदम और हवा ने स्टार्टिंग में. और ऐसे ही लोग धर्म के पत्ते को लेकर अपने आप को, अपने पापों को वो ढक रहा है. They are thinking that religion can cover their sin, but religion can never cover your sin. धर्म हमारे पापों को कवर नहीं कर सकता, क्षमा नहीं कर सकता. It cannot do it. That's why God had to show us that it's only by the blood that your sins will be forgiven. सिर्फ लहू बहाने से ही हमारे पापों की क्षमा हमको मिलती. लेकिन लोगों को पता नहीं था, इसलिए वो वेदी बनाते रहे और जानवर को मारकर उस वेदी पर डालने लगे. कोई शैतान की तरफ गए सोच कर कि वो भगवान की पूजा कर रहे हैं, लेकिन कोई जीवित परमेश्वर की पूजा करने लगे ये वेदी को बनाकर. But when Jesus came on this earth, लेकिन जब यीशु मसीह, listen very carefully, जब यीशु मसीह आया और उसको मारा, he was that lamb, you know that lamb who does not say anything, he just be quiet, वो चुप रहा. उसको लेके गया, वो कुछ बोला नहीं. उसको मारने को लेके गया. He was taken like a sheep. Isaiah 53 says, like a sheep that is quiet when it is going for shearing, when it's going to take out the wool. He is quiet. वो चुप रहा. वो जानता था कि हमारे पापों के लिए उसकी जान देनी पड़ेगी, फिर भी वो चुप रहा. He was quiet when they were scourging him and the blood was coming from his body. He was quiet. वो चुप रहा जब वो लहू बहता था. जितने बार उसके ऊपर उसने घोड़े खाए, every time he was scourged and those scourge went into his flesh, उसके चमड़ी में वो गया और बाहर आया. The scourge had nails, fishing hooks, bones, glass pieces at the end of it. It was like a broom. एक झाडू पाशीन असले ते चाबूक जे जेजूचेर मारताले ते फॉर्मॉन म्हणटा ते. आणि जितले पावटी जेजूचे ते फॉर्मॉन मारताले ते ओढून काढताले, त्याचे चामड्यान भितर वयताले, ते ओढून काढताले. They was beating him and they were pulling it and the blood was oozing out from his body because of you and me. क्योंकि लहू बहाने से ही पापों की क्षमा होगी.
और पवित्र निष्कलंक लहू चाहिए था. There was a holy blood that was needed. और धरती पर कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो पवित्र है, सिर्फ परमेश्वर. हालेलुया. सिर्फ यीशु मसीह हमारे लिए आकर वो पाप में नहीं गिरा. Temptations came to him, but he looked at you and he looked at me and he endured. He suffered that pain. Hallelujah. और उसको क्रूस पर खिलाया. They nailed him to the cross and the blood poured from his body. And the cross of Jesus Christ became that altar. यीशु मसीह का वो क्रूस जो था वो एक वेदी बन गया और यीशु मसीह खुद ही मेमना बन गया. He became that lamb and he was the final lamb of sacrifice. And Hebrews chapter 9 verse 12 says to us, it is not by the blood of goats, it is not by the blood of bulls. Hello, are you there with me? बकरी को मारने से नहीं, बकरी का लहू बहाने से नहीं, गाय का लहू बहाने से नहीं, बैल का लहू बहाने से नहीं, लेकिन अपने खुद का लहू बहाकर. हालेलुया. Not with the blood of goats and calves, but with his own blood he entered the most holy place once. एक ही बार for all, सबके लिए, having obtained eternal redemption for us. हालेलुया. एक ही बार वो पवित्र स्थान में गया. ओ बकरी का लहू लेकर नहीं, मेमने का लहू लेकर नहीं, अपना खुद का लहू लेकर वो पिता के पास गया, अपना खुद का लहू लेकर. हालेलुया. और सबके लिए उन्होंने अनंत काल का जीवन पा लिया. Hallelujah. He has obtained eternal redemption for us. हमेशा के लिए हमको खरीदा उसने शैतान के हाथ से. किसने खरीदा? किसने खरीदा? यीशु मसीह ने. Come on, say it. यीशु मसीह ने खरीदा है. Hallelujah. People say, why you so crazy about Jesus? आपको इतना क्यों बोलना है, इतना क्यों चिल्लाना है, इतना क्यों आप रोती है जब आप पुलपिट पर आती है, ऑल्टर पर आती है? क्योंकि ये वेदी मेरी है यहाँ पर जो मैं परमेश्वर के लिए लाती हूँ. हालेलुया. ये वेदी आपकी है जो आप परमेश्वर के लिए बनाते हैं और अपना जीवन हम उसके लिए उस वेदी पर डालते हैं. हालेलुया. बदले में क्या मिलता है हमें? Take all of me, Lord, give me all of you. Take all of me, give me all of you. सब ले ले, लेकिन तू मुझे चाहिए. Because he is the only one. उसके सिवा और कोई नहीं है. Hallelujah. Now I want to read you the scriptures because I don't want to just say it. Hebrews 10. Verse 12 says, but this man Jesus, after he had offered one sacrifice for sins, एक ही बलिदान पाप के लिए, बोलो एक ही बलिदान, forever sat down at the right hand of God, from that time waiting till his enemies are made his footstool. For by one offering he has perfected forever those who are being sanctified. Hallelujah. एक ही बार, एक ही बलिदान किया है, एक ही ये वेदी है. Wait, there's one scripture more. Colossians chapter 2. And then I'm done. This is the last scripture. Colossians chapter 2, 14. जब ये वेदी पर, जब क्रूस पर यीशु मसीह अपना जीवन बलिदान दे दिया, जब यीशु मसीह का लहू बहाया, when that blood was shed, what happened? Listen to this. Having wiped out the handwriting of requirements that was against us, which was contrary to us, he has taken it out of the way, having nailed it to the cross. Having disarmed principalities and powers, he made a public spectacle of them, triumphing over them in it. Having disarmed principalities and powers, उसके लहू के द्वारा उसने क्या किया मालूम है? Listen, उसने क्या किया मालूम है?
सोचो कि आपका दुश्मन आपके सामने गन लेके आया है, तलवार लेके आया है, सब कुछ लेके आया है और आपके पास कुछ नहीं है। Are you with me? You listening? सोचो एक दुश्मन आपके सामने गन लेके आया, आपको मारने को, तलवार लेके आया, सारा हथियार लेके आया आपको मारने के लिए, लेकिन आपके पास कुछ नहीं है। आप तो वहां पर निर्बल है, कुछ नहीं कर सकते। मालूम है यीशु मसीह ने क्या किया? इसी दुश्मन को, शैतान को, उसका सारा हथियार जो आपके विरुद्ध तैयार किया था, उसके लहू के द्वारा ये सब कुछ निकाल दिया गया और उसको नंगा कर दिया गया। हालेलुया। कुछ भी नहीं रहा। आपकी लड़ाई वो लड़ा। Now listen, everything that has come on you because of the altar that was done against you, चाहे वो जादू टोना हो, चाहे वो मूर्ति पूजा हो, चाहे वो कुछ भी हो जो आपके लिए किया, आपके विरुद्ध किया गया है, और शायद आपने मूर्ति पूजा करके शैतान को अपने जीवन में दरवाजा खोला है। शायद आपके माँ बाप ने, अपने दाता दाताओं ने जो कुछ किया था, उनके पाप के वजह से आपके ऊपर आ गया। आज ये दुश्मन आपके विरुद्ध जो कर रहा है ना, ये सब कुछ चला जाएगा अगर आप एक ही वेदी पर विश्वास करें तो। एक ही वेदी, और ये वेदी है बलिदान की वेदी जो यीशु ने आपके लिए की। एक ही बलिदान, अगर ये एक ही बलिदान पर, उसके लहू पर आज आप विश्वास करेंगे और अपना जीवन आज इस वेदी पर आप लाएंगे, तो उसका लहू आपको शुद्ध करता है। आपके लहू में अगर आपके दाता दाताओं का पाप है, उसका गुस्सा है, उसका एडिक्शन से, अगर वो शराब पीते थे और आपको भी शराब पीने का मन करता है बार बार, ये भी आज टूट जाएगा अगर आप यीशु के लहू पर विश्वास करेंगे तो। हालेलुया, हालेलुया। आज हम बुलाते हैं वो सॉन्ग, आज हम बुलाते हैं। थैंक यू जीसस। This moment the Lord's going to call you in the front to come and surrender your life to the Lord. I don't know if I'm going to give this teaching again, but today I believe this was the teaching that people needed. ये आज ज़रूरी था। Hallelujah, hallelujah. As this song is being played, I want you to come in the front and just bow down yourself before the Lord, and we are going to wind up today. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. कितने लोग आज मुक्ति पाना चाहते हैं? How many of you want to be free today? Hallelujah. Hallelujah. Come on, lift your hands right now. Right now. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. I cancel every altar that is done against you. Very softly you play that song. I cancel every altar that is done against you in the name of Jesus. Hallelujah. सारा जादू टोना जो आपके विरुद्ध बनाया गया है, मैं आज ये तोड़ रही हूँ यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आपके बाप दाताओं से अगर कुछ आपके लहू में आया है, अगर शैतान का कुछ भी आपके अंदर, जो आपके फैमिली लाइन से आया है, कुछ भी पीड़ा हो, कुछ भी बीमारी हो, आज ये टूट जाती है और यीशु के लहू के द्वारा आज मिट जाती है। Everything being wiped out in the blood of Jesus. Come on, just worship Him for the blood. Come on. तेरा लहू है शांति का धार, तेरे लहू से बने बिगड़े का, तेरा लहू है मुक्ति का पैगाम, तेरे लहू में सब चैनारा, तेरा लहू शांति का धार, तेरे लहू से बने बिगड़े का, तेरा लहू है मुक्ति का पैगाम, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू
presence of God is here in this place. The presence of the Lord. Just worship Him. आज अपना जीवन समर्पण, आज अपना जीवन समर्पण उसके सामने. Everyone, everyone, everyone. None of those things will remain in you. None of those things will remain in you that came down from your grandparents, that came down from your father. No addictions can remain in you. शैतान का कुछ भी बंधन आपके अंदर नहीं रह सकता. आज आप दरवाजा बंद करिए शैतान के लिए. Close the door. You have to close the door. You have to close the door. आपको शैतान के लिए आज दरवाजा बंद करना है. Say, Lord, I close that door. Lord, I close that door. मैं आज ये दरवाजा बंद करती हूँ जो शैतान को खुला मिला है मेरे जीवन में. Whatever the devil found in my life that was open right now, I cancel it in the name of Jesus. Hallelujah. It was the Lord who protected you from that accident. It was the Lord. It was Jesus. It was Jesus who sent His angels to protect you. Then no harm came to you. Although your car got damaged, but no harm came to you because Jesus was with you. जेजू तुझ्या संगता ते गाडयेन आसलो म्हणून कांय जालें ना तुझ्या पुताक. कांय जालें ना तुझ्या पुताक. आणि काय जावचें ना. आयज जशें हे वेदीचेर तुवें तुजें जिवीत समर्पण केलां जेजूच्या क्रूसा म्हळ्यान. हालेलुया. यीशु के क्रूस के सामने जब आप रोते हैं उसका लहू शुद्ध करता है. आज दरवाजे को बंद करिए. बंद करिए शैतान के लिए जो कुछ आपको शराब पीने की वो मन करता है. आज दरवाजा बंद करिए और यीशु मसीह के लहू के द्वारा शुद्ध हो जाइए. समर्पण करिए अपने आप को. ये बलिदान आपका जीवन का उसके सामने. Come on, your life as a living sacrifice before the Lord. The blood of Jesus. It's your blood, it's your blood, your holy blood, your holy blood washes me. तेरा लहू, सामर्थ्य लहू, तेरा लहू शुद्ध करता है हमें. A break off those generational hold, demonic hold on your family, on your family right now in the name of Jesus. Receive that. Your family, and your family, the ones you're praying for, the ones you're praying for, let every hold of the enemy be broken in the name of Jesus. For why should you go through what you go through right now? If it's sent from God, then you suffer willingly. But if it's from the devil, I cancel it right now in the name of Jesus. If it's from God, as you surrender in your brokenness, it will draw you more closer to the Lord. But if it's from the evil one, I close that door and I cancel every demonic altar that is done against you, your life, in the name of Jesus. तुझ में रहूं, तू मुझ में रहे, यही मेरी दिल की है दुआ. Come on, sing it. तुझ में रहूं, तू मुझ में रहे, यही मेरे दिल की, यही मेरे दिल की है दुआ. रात और दिन तुझे महिमा दूं, तेरे मंदिर में मैं रहूं. रात और दिन तुझे महिमा दूं, तेरे मंदिर में मैं रहूं. कुछ नहीं चाहिए खुदा,
बस तू ही तू चाहिए, कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। I want you all to stand up now. सब खड़े हो जाइए। See, listen. More stronger, much more stronger than the blood relation that you have with your father. More stronger than that is the blood relation that you have with your heavenly Father. जो आपको आपके माँ बाप के साथ, उनके खून के साथ जो रिश्ता है, उससे कितना भी ज्यादा आपका जो रिलेशन है अपने स्वर्गीय पिता के साथ, वो कितना भी ज्यादा बलवंत है। Much more stronger is the blood relation that you have with God, your heavenly Father. जब आप यीशु मसीह के साथ एक संबंध जोड़ते हैं, लिसन केयरफुली, जब आप यीशु मसीह के साथ एक संबंध जोड़ते हैं, जब आप यीशु मसीह को अपना जीवन का मालिक बनाते हैं, when you make Jesus Christ the Lord of your life, जो कुछ आपके ब्लड लाइन में आया, आपके दाताओं के द्वारा, आपके माँ बाप के द्वारा, आपके ब्लड लाइन में जो आया, यीशु मसीह पर जब आप विश्वास करते हैं, तो यीशु मसीह के लहू के द्वारा ये सारा पुराना जो ब्लड लाइन है, आपका ब्लड रिलेशन जो था, ये सब यीशु के द्वारा साफ हो जाता है, क्लेंस हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। तो इसका मतलब है, लिसन, इट्स गोइंग टू सेट यू फ्री। इसका मतलब है, अगर आपके ब्लड लाइन के द्वारा आपको डायबिटीज आ गई है, आपके ब्लड लाइन के द्वारा आपको कैंसर आ गया है, आपके ब्लड लाइन के द्वारा आपको स्किज़ोफ्रेनिया और हाई ब्लड प्रेशर और कुछ भी आया है आपके ब्लड लाइन के द्वारा, इसका मतलब है आपके माँ बाप को था और अगर आपको आ गया है आपके ब्लड लाइन के द्वारा। बाइबल कहता है 1 Peter chapter 1 verse 19, whatever you have received from your fathers in your blood, that by the blood of Jesus it gets cancelled. It gets cancelled. Hallelujah. ये कैंसिल हो जाता है, ये कैंसिल हो जाता है। आपको विश्वास करना है, ओके? सो अगर कुछ शैतानिक वेदी आपके विरुद्ध बनाई गई है, तो यीशु मसीह के क्रूस के वेदी के द्वारा ये सारे वेदी का पावर टूट जाता है। हालेलुया। अगर आपके ब्लड लाइन में कुछ ऐसा कुछ शैतान का आया है, शराब पीना, जादू टोना करना, गुस्सा करना, किसी की हत्या करना, ये कुछ आपके परिवार में था, आपके ब्लड लाइन में कुछ ऐसा पाप अगर आपके ब्लड लाइन में आया, तो यीशु के लहू के द्वारा आपका ये ब्लड शुद्ध हो जाता है। हालेलुया। आपको ये विश्वास करना है और ये रिजेक्ट करना है, ये रिजेक्ट करना है। सो यू हैव टू से इट, आई बिलीव इन जीसस। मैं विश्वास करता हूँ, यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ, और जो कुछ मेरे जीवन में शैतान के तरफ से आया, ये मैं रिजेक्ट करता हूँ। यू कैन रिजेक्ट इट इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। You can reject it and it will go away. Hallelujah. हालेलुया। फिजिकली भी अगर आपके शरीर में, अगर आपके शरीर पर कुछ आता है जो गंदा है, आप ऐसे करके आप रिजेक्ट कर सकते हैं। अगर आप
आपके शरीर पर कुछ कीड़ा गिर जाता है तो आप हाथ ऐसे करके उसको उठा सकते हैं आपके शरीर से। तो आपके आत्मा में अगर कुछ ऐसा आया है तो आपके आत्मा के द्वारा आप फाइट कर सकते हैं, यीशु के नाम से वो रिजेक्ट कर सकते हैं। ये मेरे अंदर नहीं रह सकता है। हालेलुया। शराब मेरे अंदर नहीं रह सकता। शराब की आदत, स्मोकिंग की आदत, ड्रग्स की आदत मेरे अंदर नहीं रह सकता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अंदर कुछ भी बीमारी नहीं रह सकती है। अगर आती है तो वह चली जाएगी, क्योंकि यीशु मसीह का लहू मेरे लिए बहाया गया है। कम ऑन नाउ, हालेलुया, हालेलुया। आपको छुटकारा मिला है यीशु के नाम में। हालेलुया। हर दिन, हर सुबह, हर शाम यीशु मसीह के लिए वेदी, अपने प्रार्थना की वेदी बनाओ और आपके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं आएगा। हालेलुया, हालेलुया। लिफ्ट योर हैंड्स। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। बोलो, मेरे परमेश्वर, धन्यवाद देता हूं कि आज तेरे वचन के द्वारा मेरे आंखें खोल गए हैं। मैं तुम्हारा हूं, तुम मेरा है, ये मैं जानता हूं। मेरे हृदय में सिर्फ तेरा वचन, सिर्फ तेरी रोशनी, मेरे मन में सिर्फ तेरा वचन, सिर्फ तेरी रोशनी रहने दो। आज के बाद मैं जानता हूं मुझे छुटकारा मिला है। शैतान का कुछ भी मेरी जिंदगी में नहीं रह सकता है। यीशु के नाम में आमीन।